غالب کا ایک کمال تھا کہ وہ ہر اعتبار سے ایک باغی اور ریولیوشنری شاعر تھا. ان کی ضروریات میں شراب بھی شامل تھی, کباب بھی شامل تھا, آم بھی شامل تھے. وہ ان کی انسانی مجبوری تھی. تو غالب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ریاکار نہیں تھا, وہ خوددار تھا, خود پرست تھا, لیکن اس کے یہاں جو اچھائیاں تھیں وہ پیغمبر اسلام کے تئیں ہو یا حضرت علی کے تئیں ہو یا کسی اور بزرگ کے تئیں ہو, وہ کسی کے یہاں نہیں ملتی. جبکہ اقبال جو ہے ایک طرف تو خانقاہیت کے مخالف تھے, دوسری طرف انہوں نے یہ روایت چھوڑی اپنے نوکر کے یہاں کہ ایک رات ان سے حضرت معین الدین چشتی اجمیری ملنے آئے تھے. یہ بات لکھی بھی ہے, تحریراً ہے. اور پھر یہ کہ جب انہوں نے کسی کو ان کے لیے لسی منگوانے کے لیے بھیجا تو وہاں جو لسی بیچنے والے تھے وہ داتا گنج بخش شیخ علی ہجویری تھے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اقبال کے نام سے منسوب ہیں, وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں. اب وہ کہاں تک اس میں اقبال ذمہ دار تھے یا کہاں تک اس میں ان کا نوکر علی بخش ذمہ دار تھا, یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن ان کی شخصیت کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جو ان کی جو ظاہری ایک روپ ہے اس سے لگا نہیں کھاتے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اقبال اچھے شاعر تھے, اس میں کوئی شبہ نہیں. مرزا غالب ایک باغی شاعر تھے, ریولوشنری شاعر تھے. غالب ریاکار نہیں تھے, خوددار تھے. اقبال بھی ایک اچھے شاعر تھے, لیکن اقبال کی شخصیت کے کئی پہلو ان کی ظاہری شخصیت سے میل نہیں کھاتے. بنگلور میں معروف شاعر و ادیب خلیل مامون نے ان خیالات کا اظہار کیا. حال ہی میں غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کی جانب سے خلیل مامون کو غالب ایوارڈ تفویض کیا گیا ہے. اس باوقار ایوارڈ کے حاصل ہونے پر بنگلور کے الامین کالج کے کانفرنس ہال میں تہنیتی اجلاس منعقد ہوا. محفل نامی تنظیم کی جانب سے ہوئے اس اجلاس میں ہندی کے شاعر اور وظیفہ یاب ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اجے کمار سنگھ، منگلور کی ینوپیا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر سید عقیل احمد، کرناٹک اردو اکیڈمی کے رجسٹرار ڈاکٹر معاذ الدین خان اور دیگر موجود تھے. اس موقع پر خلیل مامون کے خیالات و تاثرات قابل غور تھے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. کروں کہ اس ایوارڈ سے مجھے ایک خوشی تو یہ ہوئی کہ یہ ایوارڈ اس عظیم شاعر سے منسوب ہے جس کو کہ میں نہ صرف یہ کہ اردو کا بلکہ ہندوستان کا بلکہ تمام عالم کا بہترین شاعر تصور کرتا ہوں. اس میں کوئی لسانی بغض یا مذہبی بغض نہیں ہے. میں نے دانتے کو بھی پڑھا ہے، رلکے کو بھی پڑھا ہے اور پھر شیکسپیئر کو بھی پڑھا ہے، کچھ جاپنی شاعری بھی پڑھی ہے. لیکن وہ کمال کہ جو غالب نے حاصل کیا وہ کسی شاعر کو حاصل نہیں ہے. غالب کا ایک کمال تھا کہ وہ ہر اعتبار سے ایک باغی اور ریولیوشنری شاعر تھا جس کی نشاندہی بہت کم لوگوں نے خود ہمارے اپنے ادب میں کہی ہے. وہ مذہب کا باغی تھا، سماج کا باغی تھا اور شاعری کا باغی تھا. حالانکہ اپنی عملی زندگی میں انہوں نے کچھ انگریزوں سے تال میل اپنی ضروریات کے تحت، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے تحت، ان کی ضروریات میں شراب بھی شامل تھی، کباب بھی شامل تھا، آم بھی شامل تھے. وہ ان کی انسانی مجبوری تھی. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کسی بھی طرح سے ریاکار نہیں تھا، کسی بھی طرح سے ریاکار نہیں تھا. وہ پکا انسان تھا اور اس کا اعتراف بھی اس نے کیا ہے. خدا نخواستہ
यहाँ मैं कुछ बातें किसी और बड़े शायर के बारे में जिसको हमने बड़ा शायर बना रखा है, इकबाल के बारे में कहूँ तो वो सही नहीं होगा कि उनमें वो खूबियाँ तलाश करना शायद सही ना हो। हालांकि एक हमारे बड़े नाक़िद कहते थे कि पाकिस्तान ने उनको रहमतुल्लाह अलैह बना रखा है, हालांकि वो अपनी ज़िंदगी और अपनी उनकी निजी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो किसी भी तरह रहमतुल्लाह अलैह नहीं थे। तो गालिब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो रियाकार नहीं था, वो खुददार था, खुदपरस्त था, लेकिन उसके यहाँ जो अच्छाइयाँ थी वो पैगंबर इस्लाम के तई हो या हजरत अली के तई हो या किसी और बुजुर्ग के तई हो, वो किसी के यहाँ नहीं मिलती। जबकि इकबाल जो है एक तरफ तो खानखाहियत के मुखालिफ थे, दूसरी तरफ उन्होंने ये रिवायत छोड़ी अपने नौकर के यहाँ कि एक रात उनसे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिलने आए थे। ये बात लिखी भी है, तहरीरन है। और फिर ये कि जब उन्होंने किसी को उनके लिए लस्सी मंगवाने के लिए भेजा तो वहाँ जो लस्सी बेचने वाले थे वो दाता गंजबख्श शेख अली हिजवेरी थे। ये ऐसी बातें जो इकबाल के नाम से मंसूब है वो मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। अब वो कहाँ तक उसमें इकबाल जिम्मेदार थे या कहाँ तक उसमें उनका नौकर अली बख्श जिम्मेदार था, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि जो उनकी जो ज़ाहिरी एक रूप है उससे लग्गा नहीं खाते। लेकिन इतना ज़रूर है कि इकबाल अच्छे शायर थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। इससे पहले कि मैं अपनी नज़में सुनाऊं, गालिब के कुछ अशार मैं पेश करना चाहता हूं आपको। उनका शेर है, ढांपा कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, ढांका कफन ने दागे उयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, नजर में है हमारी जादे राह फना गालिब। देखिए कितनी बड़ी बात कहता है वो, नजर में है हमारी जादे राह फना गालिब, कि ये शीराजा है आलम के अज्जाए परेशान का, कि ये शीराजा है आलम के अज्जाए, यानी मौत जो है वो इन तमाम चीजों को मुज्तमा करने का एक जरिया है। हम मवाहिद हैं, हमारा केश है तरके रसूम, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए इमा हो गई, मिल्लतें जब मिट गई अज्जाए इमा हो गई। फिर और बात देखिए, रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, रगे संग से टपकता वो लहू कि फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता, जिसे गम समझ रहे हो अगर ये शरार होता, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, सरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, शरापा रहने इश्को नागुज़ीरे उल्फते हस्ती, इबादत बर्क़ की करता हूं और अफसोस हासिल का, यानी मैं बिजली की इबादत करता हूं और जो हासिल होता है उसका अफसोस करता हूं। हुए हम के मर के रुसवा, हुए क्यों ना गर्क़ दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता। एक और शेर बहुत अच्छा है कहां तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। इसके बाद दो नज़में आपके सामने पेश करता हूँ। ये नज़्म जो है उनके नाम एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हाल में पाकिस्तान में गुजरे हैं, उनका नाम था सैयद मखदूम सफदर अली शाह बुखारी। वो
बड़े अजीब किस तरह के बुजुर्ग थे कि जो तवायफों से दुआ करवाते थे। कोई भी काम के लिए जाता था तो तवायफ से कहते थे कि दुआ करो इनके लिए, और वो दुआ कबूल होकर उनके काम हो भी जाते थे। ऐसे बड़े बुजुर्ग थे वो। तो एक मरतबा एक शख्स उनके पास जाना चाहता था, तो वो उनके पास गए तो उसको वो हाथ में सोटी रखते थे, वो खींच कर उसके यहाँ ले गए। तो रात भर उनको मुजरा सुनाया उसको आदमी को, और वो दूसरे दिन जो है काफ़ी देर तक सोता रहा। तो इन्होंने फ़ोन किया उसको, फ़ोन करके क्या तेरा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा ये दर्द अल्लाह है, इस दर्द से प्यार करो। ये दर्द अल्लाह है, इस दर्द से प्यार करो। इस नज़्म का उन्वान है दर्द से प्यार करो। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। दर्द का इकरार करो, अपने से प्यार करो, प्यार का इजहार करो। अल्लाह एक मुसलसल रिश्ता हुआ जख्म है, खून बह बह कर शहर की नालियों में जमा हो गया है। खून बह बह कर शहर की नालियों में जमा हो गया है। इस खून को गंदगी बनने से रोको, अपने दिलों के खाली तहखानों में जगह दो। अपने दिलों के खाली तहखानों में जगह दो। दो जहानों से अपने आप को माला माल करो। दो जहानों से अपने आप को माला माल करो। फलस्तीन इस खून के दरिया, फलस्तीन में इस खून के दरिया बह रहे हैं। फलस्तीन में इस खून के दरिया बह रहे हैं। दर्द की हवाएं चल रही हैं। ये दर्द इसराइल के पाकीज़ा जहन में कीड़े की तरह कुलबुला रहा है। ये दर्द इसराइल के पाकीज़ा जहन में कीड़े की तरह कुलबुला रहा है। मस्जिदों के मीनारों से अजान की सूरत उभर रहा है। मंदिरों में घंटियों की सदा बन गया है। इसका एतबार करो, इसका एतबार करो। अल्लाह दर्द है जो हर जिस्म में पोशीदा है, हर रूह में कर्ब का तूफान बनकर फैल रहा है। सारी कायनात दर्द ही दर्द है। सारी कायनात दर्द ही दर्द है। सारा जमाना खून में अटा गर्द ही गर्द है। पहाड़ की चोटियों पर अल्लाह यक सफ़ेद बर्फ की तरह सर्द ही सर्द है। अगर नजात के मुतलाशी हो तो बर्फ की ठंडी सिलों पर सो जाओ। अगर नजात के मुतलाशी हो तो बर्फ की ठंडी सिलों पर सो जाओ। बहुत जल्द ये बर्फ जहन्नम की आग बन जाएगी। बहुत जल्द ये बर्फ जहन्नम की आग बन जाएगी और तुम्हें जला देगी, ऐसे कि फिर तुम राख से जिस्म जान नहीं बन पाओगे। ऐसे कि फिर तुम राख से जिस्म जान नहीं बन पाओगे। कोई जन्म जन्म का बंधन, कोई सदियों की साज तुम्हें किसी से कभी बांध ना पाएंगे। तुम ना यहाँ होगे ना वहाँ। लफ्ज़ों की गुत्थियों से दूर, आवाज़ की जादू से आज़ाद, जिस्म के लिबास से बरहना, रूह के एहसास से रूपोश, बिगड़ते हुए अपने वक्त का खुरदरी चट्टानों जैसे। तुम्हारी आंखें सब देख रही होंगी और तुम्हें कोई देख ना पाएगा। तुम्हारी अनसुनी लोरी सारी दुनिया को मीठी नींद सुला देगी और तुम मशरिक़ व मगरिब के आफाक पर सुनहरी किरणों की तरह मुस्कुरा रहे होगे। अल्लाह दर्द है, दर्द से प्यार करो। एक और नज़्म है, रास्ता बाकी है। रास्ता बाकी है जिंदगी का, रास्ता बाकी है जिंदगी का, मौत का, तन्हाई का, जंगों का, खून में लिथड़े कफन का, नादीदा चमन का, अनहोनी वतन का, मुरझाए परचमों का, ख्वाबों के अम का। रास्ता अभी बाकी है।
रास्ता बाकी है जिंदगी का, मौत का, तन्हाई का, जंगों का, खून में लितरे कफन का, नादीदा चमन का, अनहोनी वतन का, मुरझाए परचमों का, ख्वाबों के अमन का रास्ता अभी बाकी है। बढ़ती हुई अंधाधुंध तारीख का, आहिस्ता आहिस्ता घटते हुए सिसकते वक्त का, बिगड़ते हुए अपने वक्त का, खुरदरी चट्टानों जैसे संगे सख्त का, पैरों से बेतहाशा लहू बह रहा है, पैरों से बेतहाशा लहू बह रहा है, दीवारों दर और मकानों को ढह रहा है, जाने अपने आप में क्या कह रहा है। यहाँ समझ में आने वाली कोई भाषा नहीं, यहाँ समझ में आने वाली कोई भाषा नहीं, दिल में कोई भी आशा नहीं। ऐसे में मुझे शैतान को ढूंढकर मात देनी है, ऐसे में मुझे शैतान को ढूंढकर मात देनी है, खुदा की तलाश करना है, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ये सब उसके चरणों की धूल ही तो है, ये सब उसके चरणों की धूल ही तो है। ये चुपता हुआ सा है क्या, ये चुपता हुआ सा क्या है, बबूल ही तो है, ये चुपता हुआ सा क्या है, बबूल ही तो है। आंखों में उम्मीद का फूल ही तो है, आंखों में उम्मीद का फूल ही तो है, जिंदगी का सफर धूल ही तो है, जिंदगी का सफर धूल ही तो है। कहीं हवा में उड़ जाती है, कहीं जिस्म जान से चिमट जाती है, कहीं पानी में बह जाती है, रवानी को सह जाती है। कुछ भी कहो, आंसुओं से भीगी भीगी ये रात सुहानी ही तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करने आया हूँ कि जो मदो मुक़र्रीन यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे बारे में हो या फिर मेरी शायरी के बारे में हो, आप अहबाब से गुजारिश है कि जो सही है वही आप कहें, और मेरी अपनी जो कुछ मैंने लिखा है, मेरी तहरीरें, मैं उन तहरीरों का 90% या 99% हिस्सा ऊपर वाले पर महमूल करता हूँ, और 1% हिस्सा वो मेरा अपना है जो कि गलत हो सकता है। तो लिहाजा जो भी तज्ज़िया आप करें, जो भी आप ये करें, तो इसका ख्याल रखें कि ये मेहरबानी उसी की है। हमारा तो बहुत सारे शायर आए, बहुत सारे शायर गए, और बहुत सारे शायर और आएंगे हमारे बाद, लेकिन जैसा कायनात हमारे सामने है, कायनात के 1000 रंग हैं, उन रंगों को बनाने वाला कोई है, उन चीज़ों को की तख्लीक करने वाला कोई है। तो हम तो बिल्कुल, हमारी हैसियत तो ज़र्रे के मुआफिक है, ऐसे ज़र्रे के जो आज हैं कल नहीं हैं। गो कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहाँ ही क्या पूरी दुनिया में, चाहे वो आलमी अदब में हो या उर्दू अदब में हो या हिंदुस्तानी अदब में हो या दूसरे फ़नून में हो, गालिब और मीर जैसे खुद साख्ता शायर भी गुजरे हैं, खुद परस्त शायर भी गुजरे हैं, और इकबाल जैसे खुदा परस्त शायर भी गुजरे हैं, लेकिन उनके यहाँ उन्होंने दबी या लफ्ज़ों में या एलानिया तौर पर इन चीज़ों का ऐलान नहीं किया है। उनकी तमाम उम्रें जो है अपने फ़रोग़ में, अपने क्या कहते हैं, अपने आप को प्रमोट करने में उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी। उसमें से क्या अच्छा है क्या ख़राब है ये तमाम आप लोगों को मालूम है। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगा, हालांकि वो शख्स के जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा दानिश्वर या अदीब नहीं था, वो एक मामूली
मामूली क्यों, वो आज भी बहुत मकबूल है लोगों में। वो गायक था वो, मेरा इशारा मोहम्मद रफ़ी के बारे में है। जब कभी वो कोई गीत गाता था तो लोग तारीफ करते थे, तो सिर्फ इशारे से कहता था कि गलत है, ऐसा नहीं करना, ऊपर ऊपर की तरफ इशारा कर रहा। ये उसकी अजमत की दलील है। इस दलील को मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ, और जो कुछ अच्छा मेरे यहाँ है वो ऊपर वाले का दिया हुआ है, जो कुछ खराब है वो मेरा अपना है। तो इस बात का ज़रूर आप ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर जलसा डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब, प्रोफेसर अखील साहब, मुअज़्ज़ुद्दीन खान साहब, जामी साहब, आज़म शाहिद साहब, मिलन साहब, माहिर मंसूर साहब और शोराए करम। मैंने जब जामी ने ये तजवीज़ रखी कि वो तहनीती इजलास करना चाहते हैं, तो मैंने उनको बड़े ही मुखलिसाना अंदाज में कहा कि ये इस तरह के जलसों से हासिल कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, तो और ये कहा कि नहीं, ये हमारी ख्वाहिश है, हम ये करना चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो अवार्ड्स और इनामात और पता नहीं क्या कुछ देते रहते हैं। उसमें तमाम अवार्ड सही होते हैं और तमाम अवार्ड लेने वाले अहबाब सही होते हैं। इसके बारे में वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता। अब मैं किस हद तक मुस्तहक हूँ इस अवार्ड का, ये मुझे खुद इल्म नहीं है। इससे पहले भी मुझे साहित्य अकेडमी का जब अवार्ड मिला था और वहाँ किसी ने पूछा था कि आपके क्या तासुरात हैं, मैंने कहा कि मेरे कोई तासुरात नहीं है, क्योंकि आप तमाम को मालूम है कि जो अवार्ड देने वाले इदारे हैं उनके पीछे क्या कुछ कारफरमा होता है, और वो तमाम अहबाब जिनको अवार्ड मिला है वो अच्छे हैं और जिनको अवार्ड नहीं मिला है वो अच्छे नहीं हैं। ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती। एक लातीनी अमरीकी शायर और फिक्शन निगार जो बहुत मशहूर है, बोर्खीस, उसने, बहुत मशहूर राइटर है वो, उसने कहा था कि मुझे ये जो नॉर्वेजियन अवार्ड जो है वो मुझे कहीं कभी नहीं मिलेगा। बोर्खीस ने ये बात कही थी और इसी तरह से उसको नोबेल इनाम नहीं दिया गया। तो यही अवार्ड बुकर प्राइज का है। अभी हाल में एक साहब ने, यूपी के, पांडे नाम है उनका, उन्होंने मैक्से से अवार्ड वापस किया है। न सिर्फ ये कि उन्होंने मैक्से से अवार्ड वापस किया, बल्कि अमरीकी डिग्री भी वो उन्होंने वापस की उन्होंने। तो ये अवार्डों का सिलसिला जो है ये किस हद तक सही है, किस हद तक सही नहीं है, इसके बारे में आप तमाम लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो ये एहसास होता है कि मीर को कौन सा अवार्ड मिला था, गालिब को कौन सा अवार्ड मिला था, इकबाल को कौन सा अवार्ड मिला था। इकबाल तो बेचारे आखिरी वक्त तक वो हाई कोर्ट के जज बनना चाहते थे। इस ताल्लुक से उन्होंने सर्रास मसूद और हैदराबाद के कुछ करता धरता लोगों से रसूख भी पैदा किया था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उनको वो जज का मौका भी नहीं मिला और उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर तो ठीक ठाक थी, लेकिन ये कहना कि वो बहुत खुशहाल थे ये सही नहीं है। तो बहरहाल ये तो थी अवार्ड्स की बात। तो जाहिर है कुछ लोगों को जैसे जामी है या दूसरे लोग हैं उनको खुशी हुई होगी और उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि मना करना भी वो यानी ह्यूमिलिटी के ख़िलाफ़ है। तो मैं आ गया और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम अहबाब यहाँ आए
اور آپ نے کچھ باتیں اس تعلق سے کہیں. تو یہ تو وی ایوارڈ کی بات.